So after discussing the gametogenesis in human, now we are going to start with the next topic, very important one, related to the reproduction in human, and the topic name is menstrual cycle. In chapter number 1 we have talked about the reproductive cycle term. चैप्टर नंबर 1 में हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल टर्म के बारे में बात करी थी और हमने कहा था इन मैमल्स, इन फीमेल मैमल्स, द ओवरी एंड द यूट्रस शो साइक्लिक एक्टिविटी. ओवरी और यूट्रस साइक्लिक एक्टिविटी शो करता है. दैट मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद वो एक्टिविटीज रिपीट होती हैं और ओवरी और यूट्रस की इन साइक्लिक एक्टिविटीज को ही हमने टर्म दी थी रिप्रोडक्टिव साइकिल. And then we have categorized the reproductive cycles into two categories. अगर तुम्हें याद हो तो हमने reproductive cycles को we have categorized into two categories. In non-primate mammals that occurs, they are called oestrus cycle, and the reproductive cycles that occurs in primates mammals, they are called menstrual cycle. So if you want to define the menstrual cycle, so you could easily write, एक single line में आप इसको define कर सकते हैं, the reproductive cycle of female primates is called menstrual cycle. Now the term primates represents the order of class Mammalia that include all monkeys. Primate order है class Mammalia का जिसमें सभी monkeys आ जाते हैं, that include apes and humans also. That means the reproductive cycles of female apes, the reproductive cycles of female monkeys and the reproductive cycles of female human, they are called menstrual cycle. Got it? Yes, sir. It is a cycle that has an average interval. The time interval of menstrual cycle is around 28 days. That means this entire cycle repeats after every 28 days. हर एक 28 दिन के बाद ये cycle repeat होती है. Got it? And during one cycle, one follicle will mature and then ovulation will occur, and that is why only one secondary oocyte will discharge from ovary. So reproductive cycle of the female primate is called the menstrual cycle. This cycle has an average time interval of around 28 days, and during one menstrual cycle from one of the ovary, not from both, दोनों ओवरी से नहीं, किसी एक ओवरी से अल्टरनेटिवली, फॉर सपोज इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेफ्ट ओवरी से, दिस नेक्स्ट वन में राइट ओवरी से. सो इन दिस वे अल्टरनेटिवली वन secondary oocyte will be released as a result of a process called ovulation. So as I am saying, this cycle is a cycle of 28 days. So if I draw the cycle like this, and this entire cycle is representing the 28 days, ये पूरी cycle 28 days को represent कर रही है. Because during the menstrual cycle some characteristic changes occurs in ovary and the uterus, so we could divide the entire cycle into three phases depending upon those changes. If we start from the number 1 days, डे नंबर 1 से अगर हम बात करें तो डे नंबर 5 तक ये जो फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड menstrual phase. Then from day number 5 to day number 14, this phase is called follicular phase. And from day number 14 to day number 28, this phase is called luteal phase. So from here you get an idea. The entire menstrual cycle can be divided into three phases. The first is the menstrual phase, second is the follicular phase, and the third is the luteal phase. पूरी menstrual cycle को हम तीन phases में divide कर सकते हैं. Day number 1 से day number 5 तक menstrual phase, day number 5 से day number 14 तक around follicular phase, and day number 14 से day number 28 तक it is the luteal phase. Is it clear? Is it clear or not?
यस सर। यहाँ से आप एक दूसरी डेफिनेशन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की निकाल सकते हो. दिस फेज यस which सर। is called menstrual phase, during this phase a characteristic discharge occur from the reproductive tract of female and this discharge is called menstruation. मेंस्ट्रुअल फेज में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वेजाइना से एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज होता है दैट कंटेन ब्लड म्यूकस एंड सर्टेन अदर सब्सटेंसेस, और उस डिस्चार्ज को हम साइंटिफिकली मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं एंड इन कॉमन टर्म इट इज कॉल्ड पीरियड. Okay, so how the cycle will repeat? One menstruation occurs, after that follicular phase occurs, after that luteal phase occurs, and then next menstruation occurs. इसी तरीके से साइकिल चलेगा भाई. पहले 5 दिन मेंस्ट्रुएशन, फिर उससे अगले दिन फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद ल्यूटेल फेज और फिर से मेंस्ट्रुएशन. इसी तरीके से साइकिल चलेगा. सो वी कुड डिफाइन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अनदर वे. ऑल द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन. एक मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद ये साइक्लिक चेंजेस हुए, फिर अगला मेंस्ट्रुएशन. तो दो मेंस्ट्रुएशन के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते हैं इन द यूट्रस एंड द ओवरी, दे ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. उन सभी को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, एक बार और Yes. बताइए। देखो बेटा, 28 दिन की साइकिल है. डे 1 से डे 5 तक मेंस्ट्रुअल फेज है, डे 5 से डे 14 तक फॉलिकुलर फेज, डे 14 से डे 28 तक ल्यूटेल फेज. और ये चीज ध्यान रखना, ये एकदम शार्पली डे डिवाइडेड नहीं है. फीमेल्स में ये साइकिल वेरी करती है, किसी में 28 डेज से ज्यादा भी हो सकता है. ओके, सो एक ओवरऑल हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं. तो मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं. ओके, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आती है, उसके बाद ल्यूटेल फेज आती है और फिर से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है 28वें दिन. तो दो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बीच में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, इन सभी को ही हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. सो द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, दे ऑल आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? Sir, यस सर। ओके, sir, यस. सर जैसे आपने बताया कि ये डेज वेरी करते हैं, तो सर जो वो वेरिएशन में वो होगा वो किस में होगा? We will talk about it later. ल्यूटियम फेज में After होगा? completing the menstrual phase, we will talk about it later. Okay? ओके So सर. variation in it. Okay, so इतने से ही तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जा रही है बेटा कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, menstrual cycle and menstruation. These are the two different terms. Menstrual cycle is the entire cycle, and menstruation is the term which is used for the flow that occurs during the menstrual phase of menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरा का पूरा 28 दिन का साइकिल है, और मेंस्ट्रुएशन वो पीरियड है, वो फ्लो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान होता है. गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म. ओके, सो आफ्टर दिस नाउ लेट्स डिस्कस in detail about the menstruation, which is commonly also called period. Menstruation is the cyclic discharge of blood, mucus and certain other substances like strip, endometrium of uterus from reproductive tract or vagina of female at an average interval of 28 days. So how we can define the menstruation? Menstruation is a cyclic discharge, that means it repeats at a average time interval of 28 days. It is a cyclic discharge of blood, mucus and certain other substances like stripped endometrium of uterus फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल. हर 28 दिन के बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जो ब्लड, म्यूकस और कुछ और सब्सटेंसेस का डिस्चार्ज होता है, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट?
Is it clear or not, beta? सर इसमें egg भी तो present होगा. Wait a minute, बेटा, थोड़ा वेट करो. ओके, ना अब सवाल ये उठता है कि ये मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है. तो एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन. फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन. और थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया से हमें पता है, इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्रस वॉल. वो प्रोसेस जिसके थ्रू ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल से अटैच होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. सो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस हर महीने प्रिपेयर होता है. बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा. और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो यूट्रस ने अपने आप को जो तैयार किया है, अपनी वॉल को थिक करके, अपनी ग्लैंड्स को इनलार्ज करके, ब्लड वेसल को डायलेट करके, अब उसका तो कोई काम नहीं है. That is why in the lack of fertilization, that thickened wall, that thickened endometrium of uterus start stripping. वो टूटना शुरू होती है और उस थिक एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो रप्चर्ड होती हैं. एंड ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ दोज ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो occurs. एंड उस ब्लड फ्लो के साथ स्ट्रिप्ड एंडोमेट्रियम, म्यूकस और अनफर्टिलाइज्ड एग, that is secondary oocyte, will also discharge. Got it? So let's see what is the composition of menstrual flow. Menstrual flow की composition क्या है? That means जो flow जो discharge होता है उसमें क्या क्या present होता है? It contain blood around 40 to 50 ml. Blood is there. It contain mucus. It contain, as you said, the unfertilized egg. Unfertilized egg. And we have discussed that in the oogenesis, the unfertilized egg is not the egg, actually it is the secondary oocyte. So it contains secondary oocyte. Endometrium of uterus is stripping, so it contains stripped endometrium of uterus that can be appear in the form of clots. And it also contains some of the immunocompetent cells like WBCs. So this is the composition of the flow that occurs during the menstruation. Menstruation के दौरान जो discharge होता है, it contains blood, it contains mucus, it contains unfertilized egg, that is secondary oocyte, it contains stripped endometrium, and it contains WBCs also. Is it clear? And this menstruation will only occur in the case of absence of fertilization. अगर fertilization नहीं होता है तो ही आपका menstruation होगा. And that is why we could say that there are few conditions in the life of a female when the menstruation is absent. Menstruation is absent in few conditions, like it is absent before puberty, when a child female is there, एक बच्ची है तो puberty से पहले उसमें menstruation नहीं होता. It is absent during pregnancy. During pregnancy. During the pregnancy there is no menstrual flow will be observed. It is absent during lactation also. When a mother is feeding the child on the milk, on the breastfeeding, so during that time period the lactation is taking place and thus the menstruation is absent, and it is absent after menopause. What is menopause? We will discuss right now. So menstruation is absent in the life of a female before puberty, it is absent during the pregnancy, it is absent during the lactation, and it is absent after menopause. इसके अलावा सभी condition में menstruation होगा. Is it clear? So the composition of menstruation and the menstruation when it will be absent, is it clear? Is it clear? सर उसमें Yes. WBC क्यों प्रेजेंट होता है? WBCs are there to prevent any kind of infection, na? At that time the reproductive tract of female is very vulnerable for any kind of infection. So body prepare the reproductive tract to prevent from any infection. Got it?
यस सर। और सर लैक्टेशन तो वेरी करता है, तो ये कितने टाइम तक Around 6 लैक्टेशन months. में? Because a child can be on breastfeed for more than 2 years, तो जो पहले 6 महीने हैं उस दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता. ओके सर। Is it clear? यस सर। ओके बेटा. सो मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट. बट देखो अभी हमने बात करी था मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, बट ऐसा हमेशा नहीं है. दैट मीन्स इफ अ फीमेल इज मिसिंग द पीरियड्स, अगर कोई फीमेल पीरियड्स मिस कर रही है, दैट मीन्स उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अश्योरली शी इज प्रेग्नेंट, पक्के तौर पे वो प्रेग्नेंट है. बिकॉज देर आर सर्टेन अदर रीजंस ऑल्सो ड्यू टू विच द मेंस्ट्रुएशन कैन बी एब्सेंट. कुछ और भी रीजन है जिनकी वजह से मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है. इट कुड बी स्ट्रेस. अगर फीमेल स्ट्रेस की कंडीशन में, तो आपको पता है व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड, सो फ्रॉम आवर एड्रिनल ग्लैंड द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन का रिलीज होना ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से फर्दर जो फीमेल के हार्मोन्स हैं उनका नॉर्मल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, and that is why menstruation can be absent due to the stress. Menstruation can also be absent due to the some health conditions. कुछ बीमारियों की वजह से भी menstruation absence हो सकता है, and it could be due to the weakness. Weakness के कारण भी menstruation absent हो सकता है. So these are the certain reasons. तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बट इट इज नॉट अ अश्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी. अगर कोई फीमेल पीरियड्स को मिस कर रही है, इट डजंट मीन कि वो 100% प्रेग्नेंट है. कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है. इज इट क्लियर? यस सर। Okay. Now there are two terms that are used related to the menstruation for a female. The first one is menarche and one is मेनोपॉज। menarche is a term which is used for the first menstruation. When a female child enters into the puberty, जब एक female child puberty में enter करती है, so from the hypothalamus of that puberty child, from the hypothalamus, the secretion of FSH and LH significantly increase. जब एक फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसके हाइपोथैलेमस से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई द फीमेल चाइल्ड विल हैव द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, एंड दिस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कैरेक्टराइज्डली कॉल्ड मेनार्क. इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं. बिकॉज इन फीमेल चाइल्ड द प्यूबर्टी में वेरी, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंगली, अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्यूबर्टी वेरी करती है. जो गर्म इलाके हैं वहां पे प्यूबर्टी कैन बी रीच्ड अराउंड 13 इयर्स. 13 साल की उम्र में एक फीमेल प्यूबर्टी को अचीव कर सकती है, एंड इन द कोल्डर एरियाज इट कुड बी अराउंड 16 इयर्स. सो बिकॉज द टाइम पीरियड, द प्यूबर्टी टाइम पीरियड इज वेरिंग, दैट इज द टाइम फॉर द मेनार्क कैन आल्सो बी वेरी. जो फीमेल 13 साल की एज में प्यूबर्टी में एंटर करेगी उसको मेनार्क 13 साल की एज में हो जाएगा. जो 16 ईयर की एज में एंटर करेगी उसको 16 ईयर में होगा. सो द टाइम पीरियड फॉर मेनार्क कैन वेरी, but it is always considered as the first menstruation. The first menstruation is considered as menarche. Is it clear? यस सर। Second is the menopause. Here the menopause is made up of two words. Meno is representing the menstruation, और pause का बटन तो आपका रिमोट में भी होता है. जब आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हो तो पॉज करने से क्या होता है? रुक जाता है। रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. So menopause is a state when in a female the menstruation stop. This event in the reproductive cycle of a female is called the menopause, when the menstruation stops, and it occurs at the age of 45 to 50 years. 45 से 50 years की एज में menopause जाके हो जाता है. And why the menopause occurs? Because in this age, in the female, one phenomena occurs that is called ovarian एट्रोफी. फीमेल में एक फिनोमिना होता है, इसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन एट्रोफी. एट्रोफी वर्ड हम यूज करते हैं जब कभी भी कोई ऑर्गन हमारी बॉडी का डीजेनरेट होता है, जैसे हमने थाइमस एट्रोफी के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी. सो ओवेरियन एट्रोफी, दैट मींस इन दिस एज इन द फीमेल द ओवरीज गेट डीजेनरेट. ऐसा नहीं है कि ओवरी खत्म हो जाती है,
the functional tissue of ovary get replaced by the fibrous connective tissue. ओवरी की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी थी, उसमें जो स्ट्रोमा है उसकी जगह वहां पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आने लगता है. So that is called ovarian atrophy, and due to the ovarian atrophy the secretion of female hormone got decreased, and that is why the menstruation stop and it is called menopause. इसी को हम क्या बोलते हैं? menopause बोलते हैं. In medical science related with the menstruation few terms are used. मेडिकल साइंस में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ टर्म यूज करते हैं, और उसके लिए एक टर्म समझ लो. मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन. The term menorrhea means menstruation. So if a female is lacking the menstruation, अगर किसी फीमेल को menstruation हो ही नहीं रहे, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिनकी वजह से menstruation नहीं होते. For example, cystic disease of ovary. ओवरी में जो सिस्ट बन जाती है उसकी वजह से menstruation नहीं होते. So that condition when a female is lacking the menstruation, it is called amenorrhea. Amenorrhea is a state in which the lack of menstruation is there. Clear? If a female during menstruation having very low amount of blood flow, menstruation तो हो रहा है but amount of blood flow बहुत कम है, so for that we will use the term oligomenorrhea. Oligomenorrhea is a term which is used for scanty flow. Scanty flow, that means low blood flow during the menstrual cycle, during the menstruation. If a female during menstruation having a large quantity of blood flow, अगर किसी फीमेल को menstruation के दौरान बहुत ज्यादा blood flow हो रहा है, so for that we will use the term polymenorrhea. That means a large amount of blood is getting lost during the menstruation. So these are the terms that are used related with the menstruation in the medical science. If a female is lacking the menstruation, it is called amenorrhea. If the female is having the flow but the amount of blood is very low, so it is oligomenorrhea. And if a female is having the menstruation with large quantity of blood flow, it is considered as the polymenorrhea. These three terms are clear to you, beta? Yes, sir. Okay. So now we are moving towards the actual process of menstruation, and for that purpose you must have the diagram in your NCERT. एक diagram NCERT में दिया है, वो diagram आपके पास होना चाहिए. So as we have discussed, the entire menstrual cycle can be divided into three phases. The first is the menstrual phase, second is the follicular phase, and the third one is the luteal phase. So we are starting with the first phase, that is called menstrual phase. The first one is the menstrual phase, and this phase can last for 3 to 5 days. That means menstrual cycle के पहले दिन से शुरू होके 3 से 5 दिन तक बनी रहती है, and during this phase the menstruation occurs. The menstruation occur. अब ये menstruation हो क्यों रहा है, इसको समझने के लिए एक चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी पड़ेगी. The menstrual phase will only occur in the absence of fertilization. Lack of fertilization is there, then the menstrual phase will occur. अगर fertilization हो जाता है तो फिर menstrual phase नहीं होती. एक बार फिर से हम cycle draw कर लेते हैं. This is the cycle, and the first phase, this is the menstrual phase. It lasts from 1 to 5 days. It could be for 3 days also. देखो, during the reproduction in the female, एक ग्लैंड बनती है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम secretes a hormone called progesterone, and this progesterone works to maintain uterine changes. ये क्या करता है? यूटेराइन चेंजेस को मेंटेन करके रखता है. दैट मींस जो यूट्रस की वॉल थिक हो गई है उसको एज इट इज मेंटेन करके रखेगा. क्लियर? कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल से. ओके, तो यहां पे देखो ये फॉलिकुलर फेज है, ये है 14th डे, यहां पे 28 डेज. ओके, सो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है,
और उसके बाद अब इस ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम जब बनेगा तो दैट मींस इस ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा। प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन चेंजेस को मेंटेन करके रखेगा। अभी जो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम है ये खुद से दैट मींस इंडिपेंडेंटली सिर्फ 28th डे तक ही सरवाइव कर सकता है। 28th डे के बाद इसको सरवाइव करने के लिए चाहिए HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है प्लेसेंटा से, एंड प्लेसेंटा विल फॉर्म ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है दैट मेंटेन्स द यूटेराइन चेंजेस। कॉर्पस ल्यूटियम खुद 28वें दिन तक तो मेंटेन रह सकता है, बट उसके बाद मेंटेन होने के लिए इसको चाहिए HCG विच इज रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन ना हो बाय चांस तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो HCG रिलीज नहीं होगा, HCG रिलीज नहीं होगा तो 28th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन करेगा तो यूटेराइन चेंजेस मेंटेन नहीं रह पाएंगे, यूटेराइन एंडोमेट्रियम स्ट्रिप होना शुरू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और आपका मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल and it occurs due to the lack of progesterone, and in this phase the uterine endometrium start stripping and start discharging in the form of menstrual flow। इसलिए हम बोलते हैं कि menstrual phase वो phase है जिसमें menstrual flow होता है। and why this menstrual flow is taking place, is it clear? ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? Yes sir. Okay, so in these 5 days the endometrium got completely stripped, एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से स्ट्रिप हो जाएगी और वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज द नेक्स्ट फेज बिगिंस। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद नेक्स्ट फेज बिगिन होती है एंड दैट फेज इज कॉल्ड, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ नेक्स्ट फेज? द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज एंड द सेकंड फेज इज Follicular phase. इट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। इसका नाम ही है फॉलिकुलर फेज। इसको फॉलिकुलर फेज क्यों बोला? बिकॉज इन दिस फेज द मेन इवेंट दैट विल टेक्स प्लेस, दे ऑल आर रिलेटेड विद द फॉलिकल। मेन इवेंट कौन कौन से? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल का डेवलपमेंट, देन ओव्यूलेशन, दैट मीन्स रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल। गॉट इट? एक्चुअली अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यूटेराइन इवेंट्स और ओवेरियन इवेंट्स को अलग अलग लेके चलेंगे। ठीक है, अब तक क्या हमने कहा कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल all the changes that occur they are characteristics and they are occurring in the ovary and the uterus। okay, ovary और uterus में जो characteristic changes होते हैं ये कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं, that is FSH, LH, estrogen and progesterone। इनकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो नाउ इन फॉलिकुलर फेज होता क्या है, धीरे धीरे इस 5वें दिन से लेके 14 दिन तक द लेवल ऑफ FSH एंड LH विल सिग्निफिकेंटली राइज। FSH और LH का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है एंड ड्यू टू द राइज इन द लेवल ऑफ FSH एंड LH, FSH और LH के लेवल में राइज होने की वजह से व्हाट विल हैपन, FSH की फुल फॉर्म क्या है बेटा? It stands for follicle stimulating hormone। So Follicular stimulating hormone। yes, so due to the FSH the follicle start developing। दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी की एक प्राइमरी फॉलिकल, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, सिंगल लेयर्ड फॉलिकल, इट स्टार्ट डेवलपिंग। प्राइमरी फॉलिकल कैसी होती है? इट हैज अ प्राइमरी oocyte एंड अ सिंगल लेयर ऑफ follicular cell, then it will develop into the secondary follicle। Secondary follicle, that means a primary oocyte and a double layer of follicular cells। okay, then secondary follicle will convert into tertiary follicle। tertiary follicle will have a primary oocyte surrounded by the follicular cells and a cavity is also there
एक कैविटी भी इसमें प्रेजेंट होती है। Okay, and then under the influence of same hormone FSH, this tertiary follicle converts into Graafian follicle. किसमें convert हो जाती है? Into Graafian follicle. That means primary oocyte will convert into secondary oocyte. It develops a zona pellucida. Then the corona radiata is there. This is corona radiata. Then antrum is there. This layer that I am drawing here, it is membrane granulosa, and here is your Graafian follicle that contains secondary oocyte. So during the follicular phase, the development of follicle occurs under the influence of FSH hormone. FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कोई एक प्राइमरी फॉलिकल किसी एक ओवरी से सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? ये तो हो गए आपके ओवेरियन चेंजेस। इज इट क्लियर ना बेटा? FSH के दो काम Yes, है, sir. वन इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड सेकेंड वर्क इज द सिक्रीशन ऑफ ऑयस्ट्रोजन। FSH दो काम करता है, फॉलिकल को डेवलप कराता है और ऑस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है। ये ऑस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीट्स फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स। इट सिक्रीट्स फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स। अब देखो, मुझे एक चीज देख के बताओ डायग्राम, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती जा रही है, इसमें फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? As it is getting matured, the number of follicular cells is increasing or decreasing? यहाँ पे सिंगल लेयर में थी फॉलिकुलर सेल्स, यहाँ पे डबल लेयर में हो गई, यहाँ पे इट इज इंक्रीजिंग, और फॉलिकुलर सेल से सिक्रेट करती है ऑस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती जाएगी, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विल इंक्रीज, एंड दस जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होगी, उसकी फॉलिकुलर सेल से सिक्रेटिंग ऑस्ट्रोजन का लेवल भी ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा। And this estrogen will work on the uterus. इससे पहली फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से स्ट्रिप होकर डिस्चार्ज हो गई थी। दैट मींस वो उखड़ी हुई है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, फर्स्टली द स्ट्रिप्ड एंडोमेट्रियम विल हील। पहले तो उसकी हीलिंग होगी, दैट मींस वो जो रप्चर्ड हो गई है उसको ठीक करा जाएगा, जो घाव बन गए यूट्रस में वो ठीक करे जाएंगे, दे विल हील, एंड देन इट विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर जाएगी। सो दीज आर द ओवेरियन चेंजेस दैट विल सीन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, और फॉलिकल से डेवलप होने वाले ऑस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी, जो स्ट्रिप हो गई थी पिछली फेज में, वो हील अप होके प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगी। दैट मींस इनलार्ज होना, थिक होना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? मेक इट फास्ट बेटा। Yes, it's clear. यस बेटा, आपकी वॉइस लैग कर रही है, स्पीक क्लियरली। Sir, it is clear. ओके, सो नाउ ये सब चीजें 14th डे तक चलती रहेंगी। पूरी फॉलिकुलर फेज में ड्यूरिंग द एंटायर फॉलिकुलर फेज द लेवल ऑफ FSH एंड LH आर ग्रेजुअली राइजिंग। FSH और LH का लेवल ग्रेजुअली राइज करता रहता है, और मिड साइकिल में, मिड साइकिल दैट मीन्स अराउंड 28 दिन की साइकिल है, तो अराउंड 14th और 13th डे मिड साइकिल में LH एंड FSH बोथ आर ऑन पीक। दोनों हार्मोन कहां पहुंच जाते हैं? दे आर एट हाईएस्ट लेवल, दे आर ऑन पीक। और फिर मिड साइकिल में अराउंड 13th डे देयर इज अ रैपिड रिलीज ऑफ LH। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज बढ़ती रहेगी,
FSH और LH दोनों का लेवल धीरे धीरे ब्लड में राइज होता रहेगा और मिड साइकिल तक दोनों अपने हाईएस्ट लेवल पे होंगे। 13th डे के आसपास बहुत तेजी से पिट्यूटरी से LH रिलीज होता है एंड दिस रैपिड रिलीज ऑफ LH इज कॉल्ड LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड LH सर्ज। सो इन द मिड साइकिल द रैपिड रिलीज ऑफ LH is called LH surge and this LH surge will work on the Graafian follicle. ये LH surge किसके ऊपर काम करेगा? It will work on the Graafian follicle and it will cause its ruptured. It will cause the rupturing of Graafian follicle. Graafian follicle rupture हो जाएगी and that event of rupturing of Graafian follicle, that means Graafian follicle will get ruptured. ग्राफिन फॉलिकल हमारा रप्चर्ड हो गया एंड द सेकेंडरी oocyte with its zona pellucida and the cells of corona radiata, it is released outside from the ovary. This event is called ovulation and ovulation occurs at 14th day. 14th day पे ovulation होता है and this ovulation is the event of rupturing of Graafian follicle and release of secondary oocyte. If I ask why it occurs due to the LH surge. What is LH surge? It is the rapid release of LH in the mid cycle of menstrual cycle. After ovulation, your follicular phase is completed and then luteal phase begins. About the luteal phase, we will discuss in the next class and video.